بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جادو صرف نفسیات پہ اثر کرتا ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جادو صرف تخیل میں آتا ہے۔ جادو ایک ایسی حقیقت رکھتا ہے کہ جو آپ کے دل پر، آپ کے جسم پر، آپ کے نظریات پر، آپ کی جان کے اوپر بھی اثر پذیر ہوتا ہے۔ ایک دعا وہ پڑھ لے، اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں مرض جو بھی ہو فنش ہو جائے گا، ختم۔ جادو ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیشہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے اور بعض لوگوں کا اس پر مکمل یقین ہے، کچھ لوگ اس پر یقین نہیں بھی رکھتے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف آپ کی نفسیات کا معاملہ ہے، ذہنی بیماری ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق تقریباً 40% لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی جادو یا پھر برے اثرات کا تجربہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی بیماریوں یا مشکلات کی وجہ جادو کو مانتی ہے۔ اکثر اوقات ان کی حقیقت نفسیاتی مسائل سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، پھر بھی انہیں یقین ہوتا ہے کہ یا تو ان پر کسی نے جادو کی ہے یا ان سے خود کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ان پریشانی میں مبتلا ہیں۔ جادو کی حقیقت کیا ہے، اسلام اور سائنس کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے اور اس حوالے سے بطور مسلمان ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف روحانی معالج قاری شفیق الرحمان صاحب۔ قاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اثرات کتنے وسیع ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو دیکھا جائے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور آگے جا کے چل کے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جادو صرف نفسیات پہ اثر کرتا ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جادو صرف تخیل میں آتا ہے، حقیقت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن کریم میں بھی ہے، اور نقل، عقل، فلسفہ، سائنس، منطق، دنیا کا کوئی صاحب علم کے کسی بھی پرائے میں آ جائے، دلیل کے کسی بھی میدان میں آ جائے، اس کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی حقیقت ہوتی ہے، وہ تخیل نہیں ہوتا۔ قرآن نے جس چیز کو اپنا بیانیہ دیا ہے وہ حقیقت میں بیانیہ ہے۔ مثلا سلیمان علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں کے زمانے میں قرآن کریم میں باقاعدہ یہ ذکر ملتا ہے کہ جادو ہے۔ جادو ایک ایسی حقیقت رکھتا ہے کہ جو آپ کے دل پر، آپ کے جسم پر، آپ کے نظریات پر، آپ کی جان کے اوپر بھی اثر پذیر ہوتا ہے، ایون نظریات پر بھی آپ کے نظریات ایسے، اور حتیٰ کہ یہ آپ کے ٹرین کے کانٹے کی طرح آپ کی اسٹیشن بدل دیتا ہے یہ، یعنی آپ دیکھیں ایسے اسٹیشن بدل جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے آدمی اچانک دیندار آدمی بے دینی میں چلا جاتا ہے اور ایمان کا کفر میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ تو بات آپ نے زہر بھائی دیکھی ہوگی کہ صاحب ایمان مایوسی میں جاتے ہوئے تو میں نے اور آپ سب نے دیکھے ہیں۔ جی ہاں۔ تو حدیث کو دیکھا جائے من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس آیا، کسی جادوگر کے پاس آیا اور پھر اس کے بعد اس کی باتوں کی تصدیق کی، اور ایک حدیث میں فصل عن شیء، اس سے کوئی سوال کیا، میرا استخارہ کر دو، میرے ہاتھ کی لکیریں چیک کر دو، میری قسمت چیک کر دو، میرا ستارہ چیک کر دو، میری سیارے چیک کر دو، فرمایا اس آدمی نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 راتیں نماز ہی قبول نہیں ہوتی، صرف سوال کرنے۔ اب رہی بات یہ کہ جادو سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ کرنا چاہے وہ ہو سکتا ہے، مطلب کسی کی جان تک لی جا سکتی ہے۔ جان تک لینے والا مسئلہ تو بہت حساس عام فہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو آدمی نظروں سے کسی کو ٹک ٹکی باندھ کے ہپناٹزم وغیرہ یا اسی طرح دیگر جو علوم ہیں، مخفی سائنس، اکلٹ سائنس جسے کہتے ہیں، اس سے آنکھوں کی روشنی سے بندہ مارا جا سکتا ہے۔ تو آنکھوں کی روشنی بھی، دل کی غلاظت بھی، اور بد عمل اور عملیات بھی، وہ سارے مل کے تو بندہ تو فوراً مر جاتا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ بعد 7 دن میں، بعد 40 دن میں، یہ بھی شکلیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جادو کفر ہے، کرنے والا کافر ہے، کروانے والا بھی کافر ہے، اور ہمارے لیے آزمائش ہے۔ قاری صاحب، مجھے یہ بتائیے ہمارے ناظرین کے لیے، کرنے والا اور کروانے والے کے خلاف کے لیے اسلام میں کیا بتایا گیا، کیا رہنمائی ہمیں دی گئی ہے؟ دیکھیں اس کے کئی ایک واقعات، ایک پہلی ہے تو یہ والا کہ الشیاطین، وہ شیطان آدمی ہے، جادوگر کو شیطان ڈکلیئر کرتا ہے قرآن۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے کافر،
जादूगर को काफिर डिक्लेयर करता है। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने देखा जिसने जादू किया था उनको उन्होंने कत्ल करवा दिया। अब ये हुकूमती तौर पे होना चाहिए कि जिन लोगों के पास इस तरह के इल्म की डिग्री नहीं है, कुरान और सुन्नत के रूहानी बाबे बन के बैठे हुए हैं, उन सबको कंडम किया जाए और देखा जाए ये कहाँ कैसे करता है। और फिर एक और बात है, उलूम अकलिया जो है, और आपने साइंस वगैरह का जिक्र किया जी। साइंस का एक बहुत अच्छा मैं तजिया आपको अल्लाह के फजल करम से इस तरह आपको तजिया नहीं कोई बताएगा कि हवासे ज़ाहिर से मादी चीज़ों का तजिया करना, हवासे ज़ाहिर से मादी चीज़ों का तजिया करना, ना के नजरिया करना। साइंस का काम चीजों का तजिया करना है, नजरिया देना नहीं है। क्या बात है, बात समझ रहे कि ये चीज, और वो भी जो मौजूदात हैं और इसके साथ साथ जो मुशाहदात और तजर्बात में आ रही। तेरा ये काम है ही नहीं है कि ये हक है बातिल। हक बातिल कहने का सिर्फ एक ही जात के पास इख्तियार है, वो अल्लाह की जात है। बेशक कोई शक ही नहीं इसमें। जन्नत और जहन्नम का सिर्फ एक ही जात के पास इख्तियार है, वो अल्लाह की जात। सही और गलत कहने का एक ही ज़ात के पास कुरान और सुन्नत की रूह से, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और रसूल कायनात उसके हुक्म से। हम अल्लाह की पनाह के इस तजज़ियाती तौर पे, और एक यहाँ एक और बात कहूँगा, ये तजज़िया भी एक जुमला और दे रहा हूँ, तजज़िया भी मरहला वार है। एक मरहले से दूसरे मरहले का तजज़िया नहीं कर सकते। मसलन मैं और आप सब छोटे बच्चे थे और उस वक्त मेरी आंखें भी थी, मेरे कान भी थे, मेरा दिल भी था, मेरी दुनिया भी थी और मेरा जहान भी था, लेकिन मैं माँ के पेट में था। मैं उस वक्त अपना तजज़िया नहीं कर सकता जब, और वो लोग कर रहे हैं जो माँ के पेट से बाहर आ गए हैं कि माँ के पेट में प्रोसेस ये चलता है। इसी तरह हम आखिरत का तजज़िया इस मरहले में नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, बड़े खूब तरीके से समझाया। इस मरहले वो उस जगह पे चले जाएंगे, आपकी आंख मिलेगी, आपको कान मिलेगा, आपको दिल मिलेगा, आपको पूरा जहान मिलेगा। लेकिन अब हो ये रहा है कि इस जहान में है, इस मरहले में है, इस मरहले का तजज़िया हो रहा है, इसमें हो रहा है और इसका तजज़िया हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो और मालूम हो सकता है। कारी और साहब, तजज़िया से नजरिया बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा नफ्सियात का कितना अमल दखल है, मतलब जादू और जो नफ्सियाती मसाइल हैं, इन्हें किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? उसको भी खास पहचान, आपके पास भी केसेस आते हैं? क्या आजकल हर कोई कहता है कि उस पे जादू हुआ है। बिल्कुल। एक तो ये देखें कि नजर बद हो, जादू हो, नफ्सियात हो। नजर बद और जादू का फिल फौर हमला होता है, फौरियत है उसके अंदर, यानी आप बैठे बैठे बीमार हो गए, ठीक है, बैठे बैठे आपकी तबीयत खराब होगी। नफ्सियात में तदरीजन ये काम चलता है। नफ्सियात में यकदम नहीं बंदा गिरता, वो थोड़ा थोड़ा हवास बाख्ता होता जाता है, अपने आप से गुमशुदा होता जाता है। फिर इसी तरह दूसरा फ़र्क यह है कि नफ्सियाती अमराद तिब्बी तौर पे मुआयने में लिबार्टी में आ जाती हैं और जादू का लिबार्टी में और तिब्बी तौर पे मुआयने में नहीं आता। जादू की तीसरी अलामत यह है कि जादू बसौकात पूरे घर और पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लेता है। नफ्सियाती मर्ज सिर्फ उसी को लपेट में लेती है जो उसका मरीज होता है। बिल्कुल। और इसी तरह ज़हनी तौर पे अगर इसका फ़र्क किया जाए तो कुरान और सुन्नत जब जादुई मरीज पे पड़ा जाएगा तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा और उसकी तबीयत खराब होगी, और नफ्सियाती मरीज पर पड़ा जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता सुकून में आना शुरू हो जाता है। बात समझ, आहिस्ता आहिस्ता सुकून में आना शुरू। इसी तरह जादुई मरीज इबादत में, तिलावत में, रियाजत में, तीनों में तकलीफ महसूस करता है, और नफ्सियाती मरीज उसको तो हमने ये देख लिया सूरत रहमान पढ़ने से, कितने लोग जो कैंसर के मरीज हैं, नफ्सियाती तौर पे मरीज हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। ये वो बिदाहिर फरूक हैं। PIC में मरीजों को समझाई जाती है, कार्डियोलॉजी में। और सबसे बड़ी अलामत यह है कि कोई आदमी किसी की तरफ ना चला जाए, सिर्फ अल्लाह के हुजूर 2 रकत नमाज पढ़ के एक दुआ वो पढ़ ले। वो दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 10 दफ़ा सुबह, 10 दफ़ा शाम, या 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम। अल्लाह से डर के कहता हूँ, मर्द जो भी हो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म। दुनिया का कोई जादुई मर्द ऐसा नहीं है इस कलमे के पढ़ने के बाद वो रहता हो। कलमा हो, कलमा ज़बान तक ना हो, कलमे की हरारत का स्विच जो है वो दिल तक लगे,
कानों का ये ज़बान का दिल तक और कानों का दिल सिर्फ तक। रटना नहीं है, हाँ, महसूस भी करना है, तारी भी करनी है। बिल्कुल। कैफियत और एक अपने। लफ्ज़ बोलता हूँ, ईमान और दिल एक ऐसा टावर है, एक ऐसी शाख जिसके अंदर आपके ज़िंदगी के सारे अमाल इसी के साथ अटैच होते हैं। मसलन आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, अगर उस टावर के साथ आपकी सिम मिल गई ना तो फिर सिग्नल आएंगे, वरना आपके सिग्नल नहीं आएंगे। सीधी बात है, फिर आपका राब्ता किसी और की तरफ जाएगा। मौजूदा दौर की मिसालें देने कारी साहब। बड़े अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं। बहुत जबरदस्त। हाँ जी। अच्छा कारी साहब, मुझे ये बताइए, ये जो जादू का तोड़ होता है, हाँ जी। ये रूहानी इलाज में कोई खास प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है या आयात या कुरान मजीद के? देखें, जादू करने वाला ही ये प्रोसीजर बताएगा, लेकिन हम छोटा सा मोटा सा वो बता देते हैं। वो ये है कि जब आपका राब्ता शयातीन से, जब आपका राब्ता जिन्नात से और जब आपका राब्ता बदरूहों से इस तरह होता है तो वो आपको कुछ काम देते हैं, आप उसको कुछ काम देते हैं। अच्छा। हाँ, दोनों का वो मुआहदा होता है। यही चिल्ला कशी बार्टर सिस्टम चल रहा होता है। बार्टर सिस्टम और वो चल किस रहा है। तरह के अच्छा। काम आपको देते हैं? देखें, वो काम आपको सबसे ज़्यादा तो ख़तरनाक देते हैं अल्लाह, रसूल और कुरान और दीन की एहानत करने का। कोई आदमी भी कब्र में चिल्ला कर रहा ना, वो पक्की बात है कि शेखुल हदीस नहीं है, वो शैतान है, वो मरदूद है, वो बदरूह से राब्ता कर रहा है। वगरना शेखुल हदीस मस्जिद में जाता है, शेखुल हदीस कब्र में नहीं जाता। बिल्कुल। शेखुल हदीस अपने अलग से इस तरह की नमाज और रोज़े की इस तरह जगह बनाता है। वो कब्रिस्तान में कोई रियादत और चिल्लों की जगह नहीं बनाता। कब्रिस्तान मुर्दों के लिए है, जिंदा के लिए नहीं है। हमारे लोग कब्रिस्तानों में जाके चिल्ले कर रहे हैं, कब्रिस्तानों में जाके गुस्ल कर रहे हैं, कब्रिस्तानों में जाके वजीफ़े कर रहे हैं, कब्रिस्तानों में जाके गुस्ल, ये सारी चीज़ें, ये सब इस तरह। अब जिस वक्त ये शक्ल सूरत होती है, फिर अगला आदमी, जब आप अल्लाह रसूल से टूट गए हैं तो बंदे को तोड़ना तो मसला ही कोई नहीं है। बिल्कुल। जादू, मेरी बात समझ रहे हैं? तो जादूगर जिस वक्त बेरहम हो जाता है, बद अकीदा, बद अखलाक और तहारत के एतबार से गैर पकीज़ा हो जाता है, तो वो चलता फिरता इंसान शैतान होता है। कारी साहब, ज़रा ये भी बताइएगा, ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। मतलब हमारे मुशाहिदे में आता है, हम अक्सर टीवी पे देखते हैं, ड्रामों में, फिल्मों में, मतलब लीमू के अंदर जो है सुइयाँ घोंपी जा रही हैं, पुतला बना के उसकी को बाजू तोड़ी जा रही हैं, कोई भी उसका अज़ा अलग किया जा रहा है। इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं। ये किस चीज़ का स्पेसिफिक जो है वो जादू किया जाता है इस तरह की चीज़ों से? देखें, कत्ल का जो जादू है ना, वो ज़्यादातर हंडिया का जादू, मसाम का जादू, इंसानों की राख का जादू, ये बालों का भी कोई बालों का होता है, लेकिन ये है कि वो बालों के अंदर भी जादू होता है, लेकिन वो दिमाग के तौर पे है। अच्छा। अच्छा, जो आपकी जान लेवा है ना, पहले वो पुतला बनाया जाता है, पुतले को असल में दरअसल ये तस्वर किया जाता है ये मैयत है, ठीक है। और उसके ऊपर सुइयां मारी जाती है ताकि ये बिल्कुल ही मैयत बन जाए। और जादू फिर इसी तरह कभी खिलाया, कभी पिलाया, कभी लटकाया, कभी हवा में, कभी दबाया, कभी बांधा जाता है। ये मैं एक मिसाल देता हूँ, आपको समझाएगी जी। जादूगर अगर जादू की फील्ड में परफेक्ट है, उधर भी कमला और कमलों का बाप ना हो, बात समझ रहे कि नहीं? अगर वो है ना, तो वो आपको देखेगा कि आपका नाम क्या है, उज़ैर है, नजफ है, फना है, उसमें देखेगा कि अब इसको जादू खिलाने वाला पड़ा ज़्यादा जाएगा या पिलाने वाला ज़्यादा बेहतर है, लटकाने वाला ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वो देख के ही जांच लेगा। वो आपके नाम के आदाद से, जितने अच्छा। लोग जो इल्मुल आदाद वाले जी। हैं और सियारों सितारों वाले पूरे जहान में ये प्रोग्राम चल रहे हैं, शिरक है सब। और इसी तरह जो करते हैं ना, वो नाम से। मैं एक छोटी सी मिसाल, अगरचे बाद लोग इसको बिलीव करें, अदमे बिलीव, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर असरात का, जादू का, बुखारी की हदीस है। बाद लोग कहते हैं कि नहीं जी, अदब बेअदबी नहीं, ये एक मर्ज़ है, आम मादी मर्ज़ों की तरह मर्ज़ है, और मर्ज़ इंसान को लगता है, कोई मसला नहीं। आपका नाम था मोहम्मद, कितना प्यारा नाम है, उधर से मीम ली, और आपकी वालदा माजिदा का नाम था आमिना, दो मीमें ली, एक मीम मुश्तरक ले ली, और उधर से आमना था, आमना में एक अलिफ ले लिया, दोनों को मिलाया तो माँ बन गया। माँ कहते पानी, तो आपके जादू को कुएं में दबाया गया, पानी का जादू। पानी का जादू। अब किसी का मट्टी का जादू, ये तो मैंने आपको बताया कि जो जादूगर है तो इस तरीके करता है। सुहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह की हदीसें आती। रही बात यह कि जादू कोई बड़ी हकीकत नहीं रखता, ये मादी उलूम में से मादी चीज़ है, रूहानी उलूम का मुकाबला बस अल्लाह ताला हमें इस तरह के तमाम शर्त से अपनी पनाह में ही रखे, अपनी बस पनाह में यही दुआ रखे। होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।